Hi guys, welcome to our YouTube channel Streamline Education. I am Chetan and today we are going to see some theorems and properties in the chapter Similarity. But before that, some basics. Let us first see what is a transversal. Transversal. A transversal is a line that cuts across two or more lines. Simple definition, a transversal is a line that cuts across two or more lines. Suppose that these are any two given lines and there is one more line that is going to intersect these two lines at two distinct points. Then this line will be called as a transversal. What is a transversal? एक ऐसी लाइन जो कट अक्रॉस करती है दो या दो से ज्यादा लाइंस को। तो ये दो हो सकते हैं या दो से ज्यादा भी लाइंस हो सकते हैं। अब समझो ये कोई तीन लाइंस है और एक लाइन है जो ये तीनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? इट इज अ ट्रांसवर्सल. बट व्हाट वी यूजुअली सी दैट अ ट्रांसवर्सल यूजुअली कट्स टू पैरेलल लाइंस. ओके, ये जो ट्रांसवर्सल है इट इज यूजुअली शोन टू कट टू पैरेलल लाइंस. ओके, ये जो लाइंस है वो जनरली हमको पैरेलल दिए जाते हैं एंड द लाइन दैट कट्स दीस टू पैरेलल लाइंस इज आल्सो कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्सल. नाउ दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसवर्सल. In order to solve the geometry problems properly, you should be aware of the various angles, what are the names of various angles and how to identify these angles. So with the help of a transversal, we are going to understand and we are going to identify the various types of angles. Let us see the diagram. Here line BW is the transversal because it is intersecting these two lines and these two lines are parallel to each other. It has already been given. Now on the basis of this, we have to find out the various angles that are present in these two lines and the transversal. So first type of angles that we are going to see are corresponding angles. Okay, पहले जो देखने वाले कौन से एंगल्स है? corresponding angles. अब corresponding angles में एक चीज याद रखना है, corresponding angles lie on the same side of the transversal. यानी कि अगर ये ट्रांसवर्सल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आइदर लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों रहेंगे या तो राइट हैंड साइड पे दोनों रहेंगे. चलो देखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स को कैसे फाइंड आउट करना है. अब दिस इज द ट्रांसवर्सल एंड दीज आर द टू लाइंस. सपोज P is one angle which is present above this line. Okay, P एक एंगल है which is present above the line L. Then the corresponding angle to P will be the angle that is present above the line M but on the same side, लेकिन same side पे. अब P ये एंगल इस लाइन के ऊपर है तो इस लाइन के ऊपर वाले एंगल का नाम क्या है? A एंगल. So corresponding angles क्या हो गए? P and A. So I can write P and A. First pair जो है P and A. It is a pair of corresponding angles. अब एक चीज याद रखनी है और कंडीशन भी याद रखना है कि अगर ये दो लाइंस पैरेलल है, इफ दीज टू लाइंस आर पैरेलल देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल ऑलवेज बी इक्वल. अगर लाइंस पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल रहेंगे. यानी कि P and A are corresponding angles, therefore I can write P is equal to A. Angle P equal to angle A. अब देखो P था अबव के लाइन के अबव और यहाँ पे भी A है अबव द लाइन. ओके, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इस तरह से आइडेंटिफाई करता है. दे विल बी ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. चलो अभी दूसरा पैर निकालते हैं ढूंढ के. नाउ लुक एट दिस एंगल S. ये वाला जो एंगल है दिस इज S, लाइन के नीचे है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल जो रहेगा वो भी लाइन के नीचे ही रहने वाला है. तो लाइन के नीचे S है, यहाँ पे लाइन के नीचे D है, तो S and D are corresponding angles. Angle S and angle D, these are corresponding angles. I can write therefore angle S is equal to angle D. Why? Because the lines are parallel to each other. Then only the angles will be equal to one another. अब ये एक साइड पे हो गए
अब दूसरे साइड के करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखते हैं। दूसरे साइड पे है ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड पे, लाइन के अबव है Q और यहाँ पे लाइन के अबव है B। ओके, तो ये एंगल और ये एंगल, लाइन के अबव वाला ये एंगल, लाइन के अबव वाला ये एंगल, यानी कि Q एंड B। सो थर्ड पेयर है हमारा एंगल Q एंड एंगल B। Therefore angle Q equals to angle B because these are corresponding angles। और एक पेयर बचा हुआ है, अभी लाइन के ऊपर लिया था, अब लाइन के नीचे वाला एंगल है R, यहाँ पे दिस एंगल इज R, और इस लाइन के नीचे वाला भी एंगल क्या है C। लाइन के ऊपर वाला एंगल लेंगे तो यहाँ पे भी लाइन के ऊपर वाला, लाइन के नीचे वाला एंगल लोगे तो यहाँ पे भी लाइन के नीचे वाला। तो अब लाइन के नीचे R है तो यहाँ लाइन के नीचे C है, तो R and C are a pair of corresponding angles। फोर्थ जो है एंगल R and angle C। Okay, and angle R will be equal to angle C only when these two lines are parallel to each other। अगर ये दो लाइंस एक दूसरे को पैरेलल नहीं है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं होंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल्स दैट वी आर गोइंग टू सी आर alternate angles। So now let us see what are alternate angles। Very important, how to identify alternate angles। So to identify alternate angles you have to remember the shape of Z। Okay, Z shape को याद रखो। Okay, Z shape याद रखना है। अब Z का शेप ऐसे भी हो सकता है, द शेप कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, या फिर शेप उल्टा भी हो सकता है। ओके, नाउ these all shapes are somewhat similar to Z। ओके, तो ये तीन कंडीशंस, इस टाइप का जो फिगर है उसको याद रखो, कंडीशंस नहीं, फिगर को याद रखो। अब व्हाट आर अल्टरनेट एंगल्स? अल्टरनेट एंगल्स को आइडेंटिफाई करना है तो देखो अल्टरनेट एंगल्स कहाँ पे होते हैं। अगर एक अल्टरनेट यहाँ पे है एंगल तो दूसरा एंगल हो जाएगा यहाँ पे। ओके, ये चीज याद रखनी है, लाइन के नीचे, यहाँ पे इस लाइन के नीचे। ओके, अब यहाँ पे देखो अल्टरनेट एंगल्स क्या हो जाएंगे, ये अगर अल्टरनेट एंगल है इस लाइन के नीचे तो इस लाइन के वो हो जाएगा ऊपर, राइट। अब यहाँ पे देखो अगर अल्टरनेट एंगल यहाँ पे है तो दूसरा अल्टरनेट एंगल यहाँ पे हो जाएगा। These are the pair of alternate angles। So remember the shape of Z। Okay, अब देखो यही लॉजिक हम इस ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस को लगाएंगे। अल्टरनेट एंगल्स भी तभी इक्वल होते हैं जब लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर लाइंस पैरेलल नहीं है एक दूसरे को तो अल्टरनेट एंगल्स विल नॉट बी इक्वल। चलो अभी देखते हैं इसमें अल्टरनेट एंगल्स कौन से हैं। अब Z स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ पर दिखता है, लेट अस आइडेंटिफाई दैट। अब देखो यहां से गए हम, यहां पे आए और यहां पे गए। ओके, इट इज फॉर्मिंग अ Z स्ट्रक्चर, राइट। सी दिस इज अ Z। तो कंपेयर दिस Z with this Z। now these are a pair of alternate angles। यानी कि ये देखो ये Z है, अगर ये अल्टरनेट है दो लाइंस के बीच में, यहाँ पे ये हो जाएगा उसका अल्टरनेट एंगल। यानी कि एंगल S and angle B are alternate angles। ओके, alternate angles का फर्स्ट पेयर लिखेंगे हम एंगल S and angle B। ओके, एंगल S and angle B, and if the lines are parallel then angle S will be equal to angle B। Again see the Z structure। अब ये हो गया एक Z स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पे और एक Z स्ट्रक्चर है, इसका उल्टा, उल्टा यानी कि C, यानी कि you have to compare with this figure। ओके, ये देखो ये ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है और ऐसा जा रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ Z स्ट्रक्चर, यानी कि ऐसे। अब ये लाइन और ये लाइन के दो लाइंस के बीच में जो एंगल है और ये दो लाइंस के बीच में दो जो एंगल है, दीज आर अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। यहाँ पे देखो, सो लुक एट दिस Z, this angle and this angle, this angle and this angle are a pair of alternate angles। यानी कि एंगल R और एंगल A, एंगल R, एंगल A, these are a pair of alternate angles। So I can write here angle, second angle R and angle A। Okay, so
the lines are parallel already given, so we can write angle R is equal to angle A. Okay, so alternate angles will be equal when the lines are parallel to each other. Now, what type of alternate angles are these? Now, if you see this angle and this angle is lying between, means this angle is inside the two lines, and here also the angle is between the two lines. So अंदर है, इसलिए हम बोलेंगे इनको इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. ओके, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. These are the pair of interior alternate angles. Now let us see what are exterior alternate angles. Exterior alternate angles. Now, interior angles were inside the lines. Obviously, exterior alternate angles will be outside the line, right? Now we have seen that this particular angle and this particular angle are interior alternate angles. ये वाला S और ये वाला B, ये दो लाइंस के अंदर है, ये भी दो लाइंस के अंदर है, Z स्ट्रक्चर. ओके, ये हो गए इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. अब एक्सटीरियर अल्टरनेट क्या हो जाएंगे? लाइन के बाहर. यानी कि ये एंगल है तो अभी ये एंगल नहीं रहेगा, इसके ऊपर वाला यानी लाइन के बाहर, तो ये हो गया एंगल P. ओके, पहले ये अंदर था B, लेकिन अंदर वाला नहीं, उसके बाहर वाला यानी कि C. तो P और C ये क्या हो जाएंगे? फिर से Z स्ट्रक्चर देखो, Z स्ट्रक्चर, लेकिन एंगल्स आर आउटसाइड द लाइंस. ओके, Z के आउटसाइड है. सो एंगल P एंड एंगल C will be called as exterior alternate angles. Angle P and angle C, exterior alternate angles. These are exterior. Okay, exterior alternate angles. And obviously these two angles are also going to be equal if the two lines are parallel to each other. So I can write here angle P is equal to angle C. Okay, so this was one of the pairs of exterior alternate angles. Now let us find the second pair of exterior alternate angles. अब पहली बार सीधा Z देखा था, अब देखेंगे उल्टा Z, यानी कि ये जा रहा है उल्टा Z ऐसे. ठीक है, अब ये फिगर यहाँ पे आइडेंटिफाई करो. देखो यहाँ पे जो था R है और यहाँ पे जो है वो है A, लेकिन एंगल इन बिटवीन द लाइंस है, इसलिए ये पेयर ऑफ क्या हो गए? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. अब पेयर ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कौन से होंगे? जो इस लाइन के ऊपर के एंगल्स है. ओके, अब इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं मैं. अब इस लाइन के ऊपर का एंगल का नाम क्या है? Q. तो ये हो गया एंगल Q. और इस लाइन के नीचे का एंगल का नाम क्या है? Q के, ये रहा Q, और इस लाइन के नीचे का एंगल दैट इज D. ओके, सो वी कैन से दैट Q एंड D. ओके, Z को याद रखो, लाइन के ऊपर Q और इस लाइन के ऊपर D. Okay, so Q and D are another pair of exterior alternate angles, and again angle Q will be equal to angle D because the two lines are parallel to each other. अब एक चीज याद रखनी है, अगर ये लाइंस पैरेलल दिए नहीं है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर दो लाइंस दिए हैं और बोला नहीं है कि दिस लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, दिस इज नॉट गिवन कि लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, लेकिन इट हैज बीन गिवन दैट दिस एंगल इज ऑफ 50 डिग्रीज, ओके, एंड दिस एंगल इज आल्सो ऑफ 50 डिग्रीज. ओके, ये एंगल 50 का है, ये भी एंगल 50 का है. अब आइडेंटिफाई करो ये कौन से एंगल्स है. तो आपको दिखाई देगा कि ये Z स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है और ये हो गए कौन से? अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. So, if the alternate angles are equal, then the lines are going to be parallel. Okay? उल्टा, अगर alternate angles equal है तो lines parallel है, और अगर lines parallel है तो alternate angles equal है. दोनों भी चीजें याद रखिए. Similar is the case with corresponding angles. अगर lines parallel है तो corresponding angles भी equal होंगे, और अगर corresponding angles equal है तो lines are going to be parallel to each other. तो ये चीज याद रखनी है. अब next type of angles that we are going to see that are most easy to identify
and those angles are called as vertically opposite angles. Now let us see what are vertically opposite angles. बहुत सिंपल है vertically opposite angles. Vertically opposite angles के लिए जो शेप याद रखना है वो है कैंची. ओके, रॉन्ग का शेप याद रखने का है. ठीक है, तो रॉन्ग में एक एंगल ये है, तो उसका डायरेक्टली अपोजिट एंगल कौन सा हो गया? दिस वन. सो दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अगर मैंने ये एंगल लिया तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि उसका मिरर इमेज दैट इज दिस. So these are vertically opposite angles. And one thing you have to remember, vertically opposite angles are always equal in any situation. Okay? यानी कि अगर मैंने ऐसे निकाला तो ऑब्वियसली ये और ये एंगल इक्वल रहेगा और ये एंगल इक्वल रहेगा. चलो इसमें इस फिगर में आइडेंटिफाई करते हैं which one, what are the pairs of vertically opposite angles. चलो क्या याद रखना है? क्रॉस. ओके, तो क्रॉस यहां पे भी याद रखो. ये देखो ये रॉन्ग है. ओके, सो अगर मैंने ये एंगल लिया तो इसका डायरेक्टली अपोजिट एंगल आर हो गया. ओके, सो पी एंड आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. एंगल पी एंड एंगल आर, एंड एंगल पी विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल आर. हर जगह पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल ही रहते हैं. सेकेंड पेयर, अगर ये एंगल लिया तो इसका अपोजिट एस, यानी कि एंगल Q एंड एंगल S आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. एंगल Q एंड एंगल S, एंड एंगल Q इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल S. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं. अब ये हो गए दो पेयर्स, यहाँ पे भी दो पेयर्स निकलेंगे ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ये एंगल लिया तो इसका मिरर इमेज यहाँ पे आएगा. ओके, अपोजिट डायरेक्टली अपोजिट ए का कौन है? C. सो A एंड C. तो थर्ड पेयर आएगा एंगल ए एंड एंगल सी, और एंगल ए विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल सी बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. और एक पेयर कौन सा बचा है? बी एंड डी. बी एंड डी आर ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सो एंगल बी एंड एंगल डी विल ऑल्सो बी इक्वल टू ईच अदर बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अब इसके बाद जो एंगल्स देखने वाले हैं उसका नाम है इंटीरियर एंगल्स. चलो अभी देखते हैं व्हाट आर इंटीरियर एंगल्स. अब इसमें इंटीरियर वर्ड आ गया यानी कि एंगल्स विल बी इनसाइड द लाइंस. ओके, एंगल्स विल बी इनसाइड द लाइंस. और इंटीरियर एंगल्स भी सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल रहते हैं. अगर राइट साइड पे लेंगे तो दोनों एंगल राइट साइड पे रहेंगे, लेफ्ट साइड पे लेंगे तो दोनों एंगल लेफ्ट साइड पे रहेंगे. लेकिन इंटीरियर एंगल्स है सो दे शुड लाई इनसाइड द गिवन टू लाइंस, यानी कि ये दो लाइंस के इनसाइड है. सो ऑब्वियसली इस लाइन के अंदर और इस लाइन के अंदर के जो एंगल्स है दोज आर इंटीरियर एंगल्स. यानी कि आर, ओके, ये लाइन और ये लाइन. अब ये लाइन के नीचे है आर, ये लाइन के ऊपर है बी. दोनों भी इन दोनों लाइंस के अंदर है. सो आर एंड बी आर कॉल्ड द इंटीरियर एंगल्स. एंगल आर एंड एंगल बी आर इंटीरियर एंगल्स. अब इसमें एंगल R और एंगल B को हमने ऐड किया. whatever the measurement of angle R is there and whatever is the measurement of angle B, then angle R plus angle B will always equal to 180 degrees. कब? When the two lines are parallel to each other. If the two lines are parallel to each other, then sum of interior angles, okay, if the two lines are parallel to each other, sum of interior angles is always 180 degrees. okay, ये चीज याद रखो कि अगर ये दो लाइंस पैरेलल है एक दूसरे को तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स विल ऑलवेज बी 180 डिग्रीज. तो यहाँ पे R और B on the same side of transversal on the right hand side and they are lying in between the lines, अंदर है lines के, तो R and B are the interior angles and that sum will be equal to 180 degrees. अब ये साइड पे आके देखो, S and A are the two angles lying in between these two lines. So S and A are the interior angles. So obviously angle S and angle A are interior angles and angle S plus angle A will be equal to 180 degrees. Start. Okay. So angle S plus angle A 180 degrees
angle R plus angle B 180 degrees. These are both a pair of interior angles. लेकिन this condition is possible only when the line L and line M are parallel to each other. If line L is parallel to line M, okay, यहाँ पे भी अगर L है parallel to M, if then only the sum of the interior angles is 180. अब इसका उल्टा यानी कि अगर अभी दिया नहीं है कि L और M पैरेलल लाइन से, क्या है अभी दिया नहीं है कि लाइन L एंड M आर पैरेलल टू ईच अदर, लेकिन यहाँ पे इनका मेजरमेंट दिया है, समझो S का मेजरमेंट है समझ लो 60 डिग्रीज, ओके, और A का मेजरमेंट है समझो 180 डिग्रीज। ये लाइंस पैरेलल है ऐसे दिया नहीं है, लेकिन ये दोनों इंटीरियर एंगल्स का मेजरमेंट दिया है। अब इनको ऐड करो 120 प्लस 60, अगर इन दोनों का एडिशन 180 आता है तो यू कैन डायरेक्टली से दैट लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, ओके, ये चीज याद रखनी है। अगर इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्रीज है देन द टू लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर, एंड इफ द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देन द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स विल बी 180 degrees. So that is very important. Now these conditions are necessary to prove whether the lines are parallel to each other or not. ये theorems में या ये बहुत सारे problems में ये चीजें यूज होती है। चलो अभी मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल्स को, जो कि है एंगल्स इन लीनियर पेयर। चलो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट आर एंगल्स इन लीनियर पेयर? एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर किनको कहा जाता है? अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ओके, इफ आई ड्रॉ वन लाइन एंड इफ आई ड्रॉ वन मोर लाइन इन बिटवीन इट, नाउ यू कैन सी दैट these are two different angles. If I write P and this is Q, and these two angles are present inside one straight line, okay, ये दोनों भी angles एक straight line में होते हैं। और एक straight line का measurement क्या होता है? What is the measurement of a straight line? It is 180 degrees, okay, ये होता है 90 degrees, okay, और मैंने यहाँ पे और एक उतारा, ये भी होता है 90 degrees, ये भी 90 degrees। तो 90 प्लस 90 इज द होल मेजरमेंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। सो एक स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट होता है 180 डिग्रीज। तो ये जो दो एंगल्स है, जब इन दोनों एंगल्स का मेजरमेंट 180 डिग्रीज होगा तो इनको बोला जाएगा एंगल्स इन लीनियर पेयर, ओके, दे विल बी कॉल्ड एज एंगल्स इन लीनियर पेयर। और दोनों भी एंगल्स एक ही लाइन पे होने चाहिए, ओके, ऑन द सेम लाइन। फॉर एग्जांपल if I take this line, okay, अब इस लाइन का मेजरमेंट, टोटल मेजरमेंट इज 180 डिग्रीज, ओके, मैं यहाँ पे बड़ा सर्कल उतारता हूँ, ओके, तो ये पूरे एंगल का मेजरमेंट कितना है? 180 डिग्रीज। अब इसमें कौन से एंगल आ गए? P एंड Q, यानी कि P प्लस Q, यहाँ पे जो P प्लस Q है दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, बिकॉज P प्लस Q मिला के एक स्ट्रेट लाइन बनती है और स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट होता है 180 डिग्रीज। तो ऐसे जो एंगल्स है उनको हम बोलते हैं एंगल्स इन लीनियर पेयर। उनको क्या बोला जाता है? एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो ऐसे ढूंढ के निकालते हैं, यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर। पहला देखो, ये एक लाइन है, इस पे दो एंगल्स है, एंगल P एंड एंगल Q, इन दोनों को ऐड कर दो तो यू विल गेट 180 डिग्रीज। सो एंगल P and angle Q, okay, these are what angles in linear pair। अब देखो उसी के नीचे आ जाओ, सेम लाइन पे R भी है और S भी है, तो एंगल R and एंगल S, these are also angles in linear pair। अब लेफ्ट साइड पे आ जाओ, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ओके, ये स्ट्रेट लाइन पे कौन से दो एंगल्स है? ये और ये, ठीक है, ये कौन सा एंगल है? P और S। एंगल P और एंगल S को मिलाओगे तो ये स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट हो जाएगा, दैट इज 180 डिग्रीज। तो एंगल P और एंगल S, these are also what angles in linear pair, ओके। अब सिमिलरली इस साइड पे आ जाओ, ये स्ट्रेट लाइन है, उसके अबव वाले जो एंगल से देखो Q एंड R, सो दिस इज Q एंड R। तो Q एंड R are also
angles in linear pair, angle Q and angle R. Similarly, यहाँ पे देखो कौन से हो सकते हैं एंगल्स इन लीनियर पेयर. ये स्ट्रेट लाइन है तो कौन से एंगल्स हो गए A एंड B, एंगल्स इन लीनियर पेयर. तो A plus B will be equal to 180 degrees. Angle A and angle B. Then नीचे आओ D and C. Again D plus C is 180 degrees. So these will also be angles in linear pair. लेफ्ट हैंड साइड पे अगेन ये लाइन लेंगे अभी हम, तो A और D यानी कि ये पूरा एंगल. ओके, तो ये पूरा एंगल कौन से एंगल से बना है? A और D से. और A प्लस D का मेजरमेंट एक स्ट्रेट लाइन बनाने वाला है, तो दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल A एंड एंगल D. अब राइट हैंड साइड पे आओ, कौन सा बचा है? ये स्ट्रेट लाइन है, एंगल B एंड एंगल C. So these are called as what? Angles in linear pair. जब linear pair में angles होते हैं तो उनका sum जो रहता है it is always 180 degrees. तो ये थे basics कि angles को कैसे identify करना है, और ये it is a very important part in geometry. Okay? क्योंकि इसके through we can solve the various problems that you will see in the later part of geometry. Now let us see what is basic proportionality theorem. This is a very important theorem, and with this theorem we are going to solve many problems. So we are going to draw a triangle, any triangle, and we are going to name it P, Q and R. Now what we are going to do is we are going to draw a line parallel to any one of the sides. Okay. You can draw a line parallel to this side also, you can draw a line parallel to this side also, and you can draw a line parallel to this side also. Now the most convenient way of studying this theorem is to draw the line in this way. That will be parallel to the base QR. Now let us name this line as AB. Okay, now you have studied how to find the ratio. What is the ratio? Ratio means one quantity divided by another quantity. Now if I talk about this side, then I can say that AP upon AQ can be a ratio. Okay, because we are dividing this segment with this segment. Similarly, I can say that PB divided by BR is also a type of a ratio. Now we are going to study the basic proportionality theorem with the help of this triangle. Now what does the basic proportionality theorem say? If a line is parallel to one side of a triangle, if a line is parallel to one side of a triangle and intersects the remaining sides at two distinct points, and if it intersects the remaining sides at two distinct points, then it divides the sides in equal proportion. These sides in equal proportion. फिर से एक बार, okay, what is the theorem? If a line parallel to one side of a triangle, this is the line parallel to this side of a triangle. If a line parallel to one side of a triangle intersects the remaining two sides, these are the remaining two sides, intersects the remaining two sides at two distinct points, then the line divides the sides in equal proportion. ओके, इक्वल प्रोपोर्शन में ये दो साइड्स को डिवाइड करेगी. इसका मतलब क्या कि if AB is parallel to QR, this line is parallel to QR, then it will divide the remaining sides in equal proportion. यानी कि PA upon AQ, this is one ratio, it should be equal to PB upon PR. That is the meaning of this theorem. Once again I will repeat the theorem. If a line is parallel to one side of a triangle and divides the remaining sides in two distinct points, then it divides the sides in equal proportion or equal ratio. That is PA upon AQ equals to PB upon BR. Now let us write the proof of this theorem. First we will write the given things. Okay, what is given in this diagram, or what is the information that is given. First thing, this is the triangle
PQR. So we will write consider triangle PQR. Okay, where AB is parallel to QR. Okay, AB is parallel to QR. Now this line AB is going to intersect the sides in two distinct points. Okay, so I will write segment AB. Okay, segment AB intersects line PQ, intersects line PQ at point A. Okay, at point A, and it intersects segment PR and intersects segment PR at point B. At point B. Okay, so this is the information that has been given. Now what we have to prove? We have to prove that the ratio of the remaining sides are same. That means PA upon AQ is equal to PB upon BR. Equals to PB upon BR. Now, in order to prove this, you have to draw a construction. Let us see what will be the construction. You have to join segment AR. Constructions are usually drawn by dotted lines. Okay, remember that. So that anybody who sees it knows that this is the construction. So you have to join segment AR and join segment QB. So let us write the construction. Construction, join segments AR, join segment AR and segment QB. Okay, so we are done with this. Now we have to write the actual proof. So let us write down the proof. First I will tell you in brief how to solve this or how to write the proof. Now look at this triangle. First we are going to take the left hand side and then the right hand side. Okay, consider this. This portion, okay, this triangle, you can see PBQ is one part and PAR is another part. Look at this. This is one part and this is another part. So first we are going to take the left side. Okay, that means this portion, this total portion, which involves two triangles, that is PAB and ABQ. Okay, you can see two triangles PAB and ABQ. Now, if you look at PBA or PAB, and if I take AP as the base, then how will I draw the height of this triangle? Obviously, height is always perpendicular to the base. So, and the height should start from the vertex. So, if I want to draw the height of this triangle PAB with PA as the base, I am taking PA as the base. So, I have to draw a line perpendicular to the base so that this will be the height of the triangle. Okay. Now, if I write here O, then BO will be the height of triangle PAB with base PA. Okay. Now, let us see another triangle from the left hand side. That is which one? ABQ. You can look at this triangle ABQ. If you look at ABQ, I will draw here separately the triangle. Okay. ABQ, यहाँ पे inverted है, मैं उसको सीधा करके draw कर रहा हूँ. The triangle ABQ. Then B is here, A is here, and Q is here. If I want to draw the height of this triangle, I have to draw the height starting from the vertex and perpendicular to the base. So I will be drawing the height like this. Okay. अब यहाँ पे भी वही करना है. Triangle यहाँ पे है लेकिन, okay, triangle ये वाला है BAQ. अब मुझे BAQ की हाइट निकालनी है, तो मुझे कहां से लाइन परपेंडिकुलर उतारना है? B से, यानी कि B से, एंड परपेंडिकुलर टू व्हाट? टू AQ. यानी कि ये जो लाइन है इट इज ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू AQ ऑल्सो. इसका मतलब क्या हुआ कि बोथ द ट्राइंगल्स आर गोइंग टू हैव द सेम हाइट. ओके, यहाँ पे दोनों भी ट्राइंगल्स को होगा सेम हाइट. चलो अब लिखते हैं ट्राइंगल PAB एंड ट्राइंगल ये वाला है PAB एंड ABQ. ट्राइंगल PAB एंड ABQ
have equal height. Okay, they have equal height. अगर equal heights रहे तो we have studied that areas of the triangles are proportional to their corresponding bases. अगर heights equal है तो ratio are equal, area का जो ratio है it is equal to the corresponding bases. So we can write that therefore area of triangle PAB upon area of triangle ABQ, PAB and ABQ is equal to what? It is their heights are equal, so area is directly proportional to their corresponding bases. दोनों के bases क्या है? हमने PA base लिया था इस triangle का और इस triangle का लिया था हमने AQ base. So we will write PAB upon ABQ equals to PA upon AQ. और यहाँ पे रीजन क्या देना है? Areas proportional to bases. Why? Because their heights are equal. So I will write here areas proportional to bases. Areas proportional to bases. Okay. So look at this. We have taken this part first. Now we have to take this part. Okay. पहले ये side ली थी, अब लेना है ये side. Okay. And this is how we have to solve this. So let us solve the right hand side of this triangle. Again, the same things we have to do. In triangle, see this triangle. In triangle PBA, okay? In triangle PBA, ये वाला है PBA and ABR, and triangle ABR. वैसे हमने ट्रायंगल पहले भी लिया था PAB, यहाँ पे देखो PAB, तो मैं यहाँ पे PBA की जगह PAB लिखता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए बाद में उसको सॉल्व करने के लिए. ओके, PAB एंड PBA आर द सेम ट्रायंगल्स. ओके, तो दोनों का नाम हम सेम ही देंगे ताकि बाद में इजी हो जाए. सो ट्रायंगल PAB एंड ट्रायंगल ABR, triangle PAB and ABR are similarly going to have the same heights. Okay? क्यों? क्योंकि अगर मैंने इस ट्रायंगल PAB का हाइट निकाला तो मुझे ऐसा निकालना पड़ेगा from the vertex perpendicular to the base. तो ये हो जाएगा हाइट ट्रायंगल PAB का with base PB. अगर बेस PB है तो ये हाइट हो जाएगा इस ट्रायंगल का. अब ये वाला ट्रायंगल देखो BAR, this triangle. Okay? Again, if I want to draw the height of this triangle with BR as the base, तो मुझे बेस से एक लाइन परपेंडिकुलर उतारना पड़ेगा फ्रॉम द वर्टेक्स. तो मैं क्या करूंगा, ये देखो ये ट्रायंगल है, अब बेस ये है तो उसका वर्टेक्स ये है. तो अगेन आई विल ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द बेस. अब यहाँ पे इसका भी हाइट और इस ट्रायंगल का भी हाइट क्या होगा, सेम हो जाएगा. सो आई विल राइट in triangle PAB and triangle ABR, or triangle PAB and triangle ABR have equal heights. Okay, they have equal height. अगर दोनों के equal height है तो area is proportional to their bases. तो I can directly write therefore area of triangle PAB upon area of triangle ABR is directly proportional to their bases. Bases क्या है, PB and BR. So I will write here equals to PB upon BR. अब हम इन इक्वेशंस को नाम दे देते हैं. पहला हमारा ये आया था तो इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, ओके, और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2. चलो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखते हैं क्या दिया है. देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB अपॉन ABQ, PA अपॉन AQ एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB अपॉन ABR इक्वल्स टू PB अपॉन BR. दोनों जगह एक कॉमन ट्रायंगल आया है PAB, ये याद रखना है. चलो अभी और दो ट्रायंगल्स लेते हैं. यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ट्रायंगल हम लेंगे ABQ एंड ट्रायंगल ABR. अगेन एक इधर ट्रायंगल है, एक इधर ट्रायंगल है. ओके, ट्रायंगल ABQ एंड ट्रायंगल ABR. अब देखो दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है. ठीक है, बेस क्या है, AB है. तो मैं लिखता हूं ट्रायंगल ABQ, ट्रायंगल ABQ एंड ट्रायंगल ABQ हो गया, अभी AB
R and triangle ABR have the same base AB. Have the same base AB. Okay, दोनों का base same है and they lie in between the same two parallel lines. They lie in between the same two parallel lines. Okay, and they lie in between the same two parallel lines. Same two parallel lines. फिर से देखो, ट्राइंगल ABQ एंड ट्राइंगल ABR दोनों का बेस AB है, तो दे आर हैविंग द सेम बेस AB एंड दे आर लाइंग इन बिटवीन द सेम टू पैरेलल लाइंस. दोनों भी ट्राइंगल्स ये AB और QR पैरेलल लाइंस में प्रेजेंट है. ओके, तो अगर दोनों ट्राइंगल्स के बेस सेम है और दोनों अगर सेम टू पैरेलल लाइंस में लाई करते हैं, तो व्हाट वी हैव स्टडीड that their heights are also equal. Okay, so if they lie in between the same two parallel lines and bases are also equal, then we can say that therefore the heights of ABQ triangle and triangle ABR are also equal. चलो अभी हमने क्या लिखा था? They lie in between the two parallel lines and so their heights are also equal. Okay, and so their heights are also equal. चलो और एक चीज हमने देखी थी कि अगर ट्राइंगल्स के बेसिस सेम है और हाइट भी सेम है, तो ट्राइंगल्स के एरिया के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? देयर एरियाज आर आल्सो इक्वल. ओके, सो अगर एरिया ट्राइंगल्स का बेस भी सेम है और उनका हाइट भी सेम है, तो उनका एरिया भी सेम हो जाएगा. तो इससे क्या समझ में आता है कि ये जो ट्राइंगल ABQ है उसका जो एरिया है it is equal to the area of triangle ABR. So I will write here, therefore area of triangle ABQ is equal to area of triangle ABR. इसको दे देंगे हम थर्ड वाला इक्वेशन. ओके, अब फर्स्ट इक्वेशन में देखो. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में हमको क्या मिला था? एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABQ इज इक्वल टू PA अपॉन AQ. ओके, और यहाँ पे आपको क्या चीज मिली कि ABQ इज इक्वल टू ABR. ओके, दिस ABQ, ये जो ABQ है इट इज इक्वल टू ABR. इसका मतलब क्या हुआ? ये देखो, यहाँ पे PAB है, यहाँ पे भी PAB है, यहाँ पे ABQ है, यहाँ पे ABR है, लेकिन यहाँ से रिलेशन क्या मिला कि ABR और ABQ दोनों भी इक्वल है. अब डिनोमिनेटर्स इक्वल है और न्यूमरेटर्स भी इक्वल है. ओके, अच्छे से देखो, यहाँ पे PAB है, यहाँ पे PAB है, यहाँ पे ABQ है, यहाँ पे ABR है, लेकिन ABQ इज इक्वल टू ABR. ABQ और ABR इक्वल है, तो ऑब्वियसली अगर न्यूमरेटर भी इक्वल है और डिनोमिनेटर भी इक्वल है, तो उनके जो राइट हैंड साइड्स है वो भी इक्वल हो जाएंगे. यानी कि अगर लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल है तो उनके राइट हैंड साइड्स भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं. तो मैं क्या लिखूंगा? देयरफॉर फ्रॉम 1, 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 and 3, तीनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करेंगे तो मैं क्या लिख सकता हूं? एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB. ओके, मैं ऊपर लिख देता हूं, काफी नीचे चला गया हो, यहां से ऊपर. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABQ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABR. ये क्यों लिखा मैंने? क्यों लिखा? बिकॉज ABQ इज इक्वल टू ABR. अगर ABQ इक्वल टू ABR है तो मैं इसको ABQ भी लिख सकता हूं, तो ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल होने वाले हैं. तो अगर ये दोनों इक्वल है तो ऑब्वियसली PA अपॉन AQ will be equal to PB upon PR. Therefore I can write, therefore PA upon AQ is equal to PB upon BR, equals to PB upon
BR। चलो हमको प्रूफ क्या करना था, क्या हमारा प्रूफ हो गया है? सी व्हाट वी हैव टू प्रूफ, PA upon AQ equals to PD upon BR। So we have solved this and we can write the ending statement, hence proved। Okay, so this is the proof of the theorem that is called basic proportionality theorem, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं BPT theorem। Now let us see the converse of basic proportionality theorem। पहले देखेंगे what was basic proportionality theorem। basic proportionality theorem में क्या था, if a line is parallel to one side of a triangle, if a line is parallel to one side of a triangle and intersects the remaining sides in two distinct points, then it will also divide the lines in the same ratio। यानी कि if what was the condition in basic proportionality theorem, that if PQ is parallel to BC, अगर ये लाइन इसको parallel है, then what will happen, AP upon PB, AP upon PB will be equal to AQ upon QC। Okay, now this was basic proportionality theorem। अब हम देखने वाले कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कि उसका उल्टा। अभी कंडीशंस चेंज हो जाएंगे। अभी क्या हो जाएगा कॉन्वर्स में, पहले रेशियो विल बी इक्वल ऐसा बोला जाएगा एंड देन वी हैव टू प्रूव दैट द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। यानी कैसे कि इफ AP अपॉन PB, if AP upon PB is equal to AQ upon QC, is equal to AQ upon QC, then what we have to prove? Then prove that PQ is parallel to BC। So what is the converse of basic proportionality theorem? If a line intersects the two sides of a triangle, okay, if a line intersects the two sides of a triangle, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ये दो साइड्स को एट पॉइंट्स P and Q। So if a line intersects the two sides of a triangle in the same proportion, then it is parallel to the third side। फिर से एक बार, if a line intersects the two sides of a triangle in the same proportion, then it is parallel to the third side। Now let us write down the proof for this theorem, that is converse of basic proportionality theorem। तो पहले क्या लिखना है, पहले गिवन थिंग्स लिख लो, क्या दिया है, अभी इस बार रेशियो पहले इक्वल है करके दिया है। सो गिवन AP अपॉन PB is equal to AQ upon QC, this is already given, and what we have to prove, we have to prove that this line PQ is parallel to BC। so write down what we have to prove, we have to prove that segment PQ is parallel to segment BC। Now for this we have to draw one construction। ओके, अभी हमको पता नहीं कि PQ पैरेलल है कि नहीं BC को, हमको यही प्रूफ करना है कि PQ इज पैरेलल टू BC। इसलिए अभी तक हम कह नहीं सकते कि PQ पैरेलल है BC को। तो हम क्या करेंगे, हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे और बोलेंगे कि वो जो लाइन हम ड्रॉ करने वाले हैं वो पैरेलल टू BC है। चलो देखते हैं कैसे। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन, let us name it as M। okay, so what I am going to write, construction, draw segment PM, draw segment PM parallel to BC। okay, we have to draw segment PM parallel to BC, this is a construction। okay, so अभी हमने PM ड्रॉ की है सेगमेंट और कहा है कि दैट PM सेगमेंट इज पैरेलल टू BC, और हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि दिस सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू BC। ओके, नाउ PM इज पैरेलल टू BC, सो इन ट्रायंगल ABC, नाउ लेट अस राइट डाउन द प्रूफ। इन ट्रायंगल ABC, ओके, ट्रायंगल ABC में PM इज पैरेलल टू BC। ओके, PM सेगमेंट PM parallel to segment what BC, because why, by construction, हमने कंस्ट्रक्शन में दिखाया ऑलरेडी, बता दिया कि वो लाइन पैरेलल है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा by construction।
ओके, डोंट फॉरगेट टू राइट दिस बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, ये मिटा देता हूं मैं जब तक साइड का। So by construction, PM is parallel to BC. Therefore, I can write AP upon PB is equal to AM upon MC. Is equal to AM upon MC. Why did I write this? Obviously, we have studied the basic proportionality theorem. Basic proportionality theorem में क्या था कि अगर कोई लाइन पैरेलल है ऐसे, और समझो इसको मैंने दे दिया ABC एंड PQ। अगर ये लाइन इसको पैरेलल है तो AP अपॉन PB विल बी इक्वल टू AQ अपॉन QC। बाय कंस्ट्रक्शन PM इज पैरेलल टू BC। ओके, PM लेना है, PQ नहीं। PM हमने बोल दिया कि इट इज पैरेलल टू BC। Therefore AP upon PB equals to AM upon MC। ओके, नाउ ये तो हमने लिख दिया, दैट इज बाय कंस्ट्रक्शन, एंड दिस रेशियो इज इक्वल बिकॉज ऑफ विच थ्योरम? Basic proportionality theorem. Okay, so by BPT theorem or basic proportionality theorem. So AP upon PB is equal to AM upon MC. Why? Because PM is parallel to BC, and according to basic proportionality theorem, then AP upon PB will be equal to AM upon MC. Okay, अब ये चीज तो हो गई, इसको हम लिख लेते हैं AP upon PB equals to AM upon MC। लेकिन हमारे पास एक गिवन चीज है। ओके, वो गिवन क्या था देख लो, AP upon PB, बट AP upon PB is equal to AQ upon QC। It is equal to AQ upon QC। Why? It is already given। चलो अभी ये दो इक्वेशंस को देखो। ओके, इसको चलो लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 से क्या पता चलता है? देखो, जब भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल रहते हैं तो ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पे AP अपॉन PB इक्वल है AM अपॉन MC पे, और यहाँ पे AP अपॉन PB इज ऑल्सो इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो यहाँ ये दो सेम है तो ऑटोमेटिकली ये दो भी इक्वल हो जाएंगे। तो मैं क्या लिखूंगा? फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 व्हाट विल हैपन? दीज टू, ये देखो ये दो इक्वल है तो ऑटोमेटिकली उनके जो राइट हैंड साइड है वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो मैं क्या लिखूंगा? AM अपॉन MC इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। क्या मिला हमको? यहाँ पे लिख देता हूं फिर से, that AM upon MC is equal to AQ upon QC। चलो अब हम ना इसमें एक वेरिएशन करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं? We are going to add 1 to both left hand side and right hand side। ओके, अब 1 क्यों ऐड कर रहे हैं दोनों साइड पे, ये थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। ओके, so we are going to add 1 to left hand side and right hand side। यानी कैसे? add 1 to left hand side and right hand side। so ये इक्वेशन क्या बनेगा? AM अपॉन MC प्लस 1 इक्वल्स टू AQ अपॉन QC प्लस 1। अब मैं पूछता हूं कि क्या हमने ओरिजिनल इक्वेशन में कोई चेंज किया है? नहीं, ओरिजिनल इक्वेशन को हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर ये 1 यहाँ पे चला जाएगा राइट हैंड साइड पे तो -1 हो जाएगा, और फिर से +1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और सिर्फ बचेगा हमारे पास AM अपॉन MC इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। तो हमने कोई ओरिजिनल इक्वेशन में चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ 1 दोनों जगह ऐड कर दिए और इक्वेशन वैसे की वैसे ही रहेगी। ओके, अब we have to solve this and we have to solve this, okay, by cross multiplication। इसके नीचे कुछ नहीं आने 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं आने 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। AM into 1 AM प्लस MC into 1 MC अपॉन MC into 1 MC is equal to AQ into 1 AQ प्लस QC into 1 QC अपॉन QC into 1 QC। चलो अभी देखो AM प्लस MC,
AM plus MC. AM plus MC is nothing but this line AC. ओके, AM और MC को मिला के कौन सी लाइन बन रही है? AC लाइन. तो मैं AM plus MC को लिख दूंगा AC अपॉन MC इज इक्वल टू AQ plus QC. AQ plus QC. लेकिन फिर से देखो, AQ plus QC is again line AC. ओके, ये फिर से क्या बन गई? लाइन AC अपॉन QC. अब मैं AC को इधर ला लेता हूं और MC को उधर लेके चल जाता हूं. सो व्हाट विल इट बिकम? AC को यहां ला लिया अपॉन AC इक्वल्स टू MC ऊपर ले लिया, MC अपॉन QC. अब ये दोनों AC है तो दे विल गेट कैंसल एंड वी विल गेट 1. तो इससे क्या मिल जाएगा? देयरफॉर QC into 1 यानी कि QC is equal to MC. देयरफॉर QC is equal to MC. क्योंकि यहाँ 1 है तो QC into 1 is QC, यहाँ इक्वल टू साइन है तो QC equals to MC. हाँ, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. QC equals to MC. ओके, ये जो QC है, देखो ये डिस्टेंस QC एंड दिस डिस्टेंस MC इज इक्वल. ओके, ये कंडीशन कब सेटिस्फाई हो सकती है? जब M और Q ये जो पॉइंट्स है दे आर वन एंड द सेम पॉइंट. ओके, ये दोनों पॉइंट अलग अलग नहीं है, ये दो पॉइंट एक ही पॉइंट है, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है. ओके, अगर QC यहाँ, अब हम इमेजिन करते हैं कि Q जो पॉइंट है यहाँ पे है और M जो पॉइंट यहाँ पे है, तो QC का लेंथ और MC का लेंथ कभी इक्वल हो पाएगा क्या? ऑब्वियसली नॉट. लेकिन हमको मिल गया कि QC इज इक्वल टू MC. इसका मतलब ये हो गया कि जो हमने M पॉइंट लिया था, it is nothing but here M and Q are one and the same points. Okay, so this means that M and Q are the same points. Okay, agar M and Q are the same points, then we can say that therefore what? PQ is parallel to BC, because PQ line is nothing but PM line and PM is already parallel to BC. हमने क्या लिया था कि ये जो लाइन PM है वो पैरेलल टू BC है बाय कंस्ट्रक्शन. लेकिन बाद में प्रूफ के बाद क्या पता चला कि अरे ये M पॉइंट जो है इट इज नथिंग बट द पॉइंट Q इटसेल्फ. सो ये PM लाइन इज नथिंग बट PQ लाइन एंड देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू BC. ओके, एंड देयरफॉर आई कैन राइट हियर देयरफॉर सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू सेगमेंट BC. सो this is how we have to prove it. Now let us see the property of an angle bisector of a triangle. Property of an angle bisector of a triangle. Now look at this figure. PQR is the triangle and here PS is the angle bisector. What do you mean by an angle bisector? An angle bisector divides the given angle into two equal parts. यानी कि ये जो पूरा P एंगल है उसको दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा. कौन सा? दिस लाइन PX. सो जब एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में जो लाइन डिवाइड करती है उसको हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर. चलो अब थ्योरम या प्रॉपर्टी देखते हैं. प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर. व्हाट डज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर से? इट सेज दैट द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P. So the bisector of an angle of a triangle, the bisector of an angle of a triangle divides the side opposite to the angle. This is the side opposite to this angle. Okay, it divides the side opposite to the angle in the ratio of the remaining sides. Okay, in the ratio of the remaining sides. थोड़ा confusing लगेगा, फिर से सुनो. What is the angle bisector property? The bisector of an angle, the bisector of angle P, यानी कि the bisector of an angle divides the side opposite to the angle. This is the side opposite to the angle in the same ratio of the remaining sides. Okay, जो इस सेगमेंट का रेशियो रहेगा, यानी कि ये जो सेगमेंट है QR उसके दो हिस्से हैं, that is QS and SR. तो इन दोनों का रेशियो हम कैसे लिखेंगे? QS अपॉन SR. ओके,
तो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी बताता है कि इसका जो रेशियो है वही रिमेनिंग टू साइड्स का रेशियो है। रिमेनिंग टू साइड्स कौन से हैं? PQ एंड PR। तो दिस शुड बी इक्वल टू PQ अपॉन PR। ओके, सो द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड opposite to the angle in the same ratio of the remaining sides or in the ratio of the remaining sides, यानी कि QS upon SR is equal to PQ upon PR। अब एक चीज याद रखना है, अगर ये साइड पहले लोगे तो उसी साइड की ये साइड लेना है, यानी कि अगर मैं QS लेता हूं तो मुझे PQ ही लेना है या QP लेना है। ओके, अगर मैं पहले PR लेता हूं तो मुझे SR ही लेना पड़ेगा, या तो फिर अगर मैं SR लेता हूं SR अपॉन SQ, SR अपॉन SQ, तो जो साइड पहले ली है उस साइड वाली साइड आगे भी पहले ही आएगी, यानी कि PR अपॉन PQ। ओके, दिस विल नॉट बी इक्वल टू SR अपॉन SQ विल नॉट बी इक्वल टू PQ अपॉन PR। वो चीज याद रखना है, जो साइड पहले ली है वही साइड पहले लेनी है। ठीक है, अब we have to prove this property. Now what has been given? Let us write down. Given is that this PS is the bisector of the angle or segment PS is the angle bisector. Okay, it is the angle bisector. अब angle bisector है तो obviously वो ये जो QPR जो पूरा एंगल है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो दो ट्रायंगल्स कौन से बन गए? ये और ये। अब क्या हो जाएगा? एंगल QPS, यहां पे सेंटर में लिख देता हूं, एंगल QPS विल बी इक्वल टू SPR, क्योंकि इस एंगल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया है इस एंगल बाइसेक्टर। सो आई विल राइट देयरफॉर एंगल QPS is equal to angle SPR या RPS. This has been already given. Now, in order to prove this, we have to draw some construction. पहले लिख देंगे to prove what we have to prove. We have to prove that QS upon SR, QS upon SR is what? It is equal to PQ upon PR, is equal to PQ upon PR। ये हमको प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमको एक कंस्ट्रक्शन उतारना है। We have to draw a line from point R। ओके, हमको R से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना है कि वो पैरेलल रहने वाली है दिस PS लाइन को। ओके, इस लाइन को हमको एक लाइन यहां से पैरेलल उतारना है। चलो अभी यहां से एक लाइन पैरेलल उतारते हैं, ट्राई करते हैं पैरेलल उतारने का यहां से। ओके, दिस इज अ लाइन पैरेलल टू PS फ्रॉम द पॉइंट R। ओके, यहां पे R लिख देता हूं साइड में। सो वी हैव ड्रॉन अ लाइन फ्रॉम द पॉइंट R such that it is parallel to PS। And the second thing what we have to do is we have to extend the line PQ। ओके, हमको इस लाइन को एक्सटेंड करना है। ओके, इसको डॉटेड उतार देता हूं ताकि कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड लाइंस में उतारो। अब देखो, इस QP लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया तो दिस लाइन इज गोइंग टू इंटरसेक्ट दिस लाइन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, इसको दे देंगे हम नाम N। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन। सो लेट अस राइट डाउन द कंस्ट्रक्शन। नाउ व्हाट वी हैव ड्रॉन? वी हैव draw a line from point R parallel to which segment? Parallel to segment PS। okay, parallel to segment PS। चलो parallel to segment PS हमने उतार दिए। ओके, उसके बाद क्या करना है? we have to extend the line QP और PQ। यहां पे लिखेंगे extend line QP such that it intersects the line drawn from point R
intersects the line drawn from point R at point M. ओके, at point M. इसका मतलब क्या हुआ? At point M. इसका मतलब क्या हुआ कि we have extended this line PQ or QP such that it intersects the line drawn from R point R at point M. ये line इसको intersect कर रही है at point M. So this is our construction. Okay. Now we have seen earlier how to identify different types of angles, यानी कि alternate angles क्या है, corresponding angles क्या है. Okay, ये अच्छे से पता होना चाहिए to write the proof of this theorem, okay, or property. Now let us write down the proof of this property. If you look at these two lines PS and MR, okay, we have drawn these lines parallel to each other and we know what is the transversal. Okay, transversal किसको बोलते हैं? जो लाइन दो या दो से ज्यादा लाइन को इंटरसेक्ट करती है, okay, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल. तो अभी थोड़ा सा इमेजिनेशन को बढ़ाओ, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इमेजिनेशन को बढ़ाना पड़ेगा. ओके, अब देखो ये दो पैरेलल लाइंस है. ओके, अब इन दो पैरेलल लाइंस को कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है? ओके, अब मैं क्या करता हूं आपकी कन्वीनियंस के लिए, सिर्फ ये आपको करना नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं. मैं ये लाइन एक्सटेंड कर देता हूं. ओके, और इस लाइन को भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं. चलो, अभी वी गॉट दीज टू लाइंस एंड you can see that this line, okay, ये line, it is intersecting the two lines, parallel lines at point P. Okay, this is point P and this is point M. Okay, imagine that these two lines are parallel and this is the transversal. Okay, तो अभी हमको क्या लिखना है? Line PS, line, अब प्रूफ लिखना हमने शुरू कर दिया. Line PS parallel to line MR. Why? By construction. Okay, this is by construction. हमने construction ही वही लिखा है. And transversal किसको लेने वाले हैं? PM is the transversal. Okay, and segment PM is the transversal. चलो, अभी मैंने बताया था कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं. ओके, दे लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. अब मैंने अगर इस लाइन के ऊपर एक एंगल लिया, ओके, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? ऑब्वियसली सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और लाइन के ऊपर. यहाँ लाइन के ऊपर है तो यहाँ पे भी लाइन के ऊपर, ये दो हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स. सेम लॉजिक यहाँ पे लगाना है. ओके, ये दो लाइन्स है और ये है ट्रांसवर्सल. ठीक है, अभी मैं ये रब कर देता हूं थोड़ी देर के लिए. चलो, ये दो लाइंस है और दिस इज द ट्रांसवर्सल. तो देखो, ये जो है इस लाइन के ऊपर का एंगल है, यानी कि ये एंगल. ठीक है, अब इस लाइन के ऊपर का एंगल कौन सा हो गया? ये वाला. ओके, इमेजिन करो, देखो ये है PS, यहां पे ड्रॉ करता हूं मैं अलग से. ठीक है, ये P है, ओके, और S है. तो एक लाइन हो गई SP. देखो, ये लाइन को मैंने ऐसे जाके सीधा कर दिया तो वो बन गई SP. अब RM लाइन को मैं सीधा कर देता हूं तो R और M. ठीक है, अब ये जो लाइन है उसको ड्रॉ करना है. ओके, ये जो लाइन PM है, PM लाइन कहां से जा रही है? यहां से जा रही है, ऐसे. ठीक है, अब ये डायग्राम में इसको हम मिटा देंगे, यहां पे लिखेंगे P पॉइंट. अब देखो, ये जो एंगल है SP, ओके, कौन सा वाला? SPQ. ये पॉइंट है Q. SPQ विल बी इक्वल टू RMP. यहाँ पे भी लाइन के ऊपर, यहाँ पे भी लाइन के ऊपर. ये कौन सा एंगल्स है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. और जब लाइंस पैरेलल रहते हैं देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. वही रिलेशन हमको यहाँ पे लगाना है. SPQ, ये जो एंगल है, इट इज इक्वल टू विच वन? RMP या तो PMR. ओके, PMR. सो ये एंगल और ये एंगल हो गए इक्वल. ओके, तो हमको यहाँ पे अभी वही चीज लिखनी है. सो
I will write which angle QPS, angle QPS is equal to angle PMR. Why? Because they are corresponding angles. Okay, यहाँ पे लिख दो corresponding angles. चलो, अभी हमने दो लाइंस लिए थे और ये ट्रांसवर्सल लिया था। अभी फिर से यही दो लाइंस लेंगे, लेकिन हम ट्रांसवर्सल को चेंज कर देंगे। अब देखो, ये वाला एक ट्रांसवर्सल है और इस लाइन को भी अगर देखोगे तो ये भी लाइन क्या कर रही है, अब मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं। देखो, ये लाइन भी क्या कर रही है, इन दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट P एंड R, यानी कि लाइन PR हो गई ट्रांसवर्सल और ये लाइंस हो गए पैरेलल टू ईच अदर। सो अगेन आई हैव टू राइट दैट सेगमेंट PS इज पैरेलल टू सेगमेंट MR, ओके, पैरेलल टू सेगमेंट MR, लेकिन अब ट्रांसवर्सल कौन सा है, विथ PR एज द ट्रांसवर्सल एंड PR is the transversal and PR is the transversal. चलो, अब ट्रांसवर्सल हो गया। अभी पिछले वीडियो में हमने देखा था सब एंगल्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो हमने अल्टरनेट एंगल्स को भी देखा था कैसे आइडेंटिफाई करना है। ओके, अल्टरनेट एंगल्स में Z स्ट्रक्चर देखना है। Z स्ट्रक्चर के अंदर ये वाले जो एंगल्स रहते हैं उनको हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो अब ये दो लाइंस है और ये है ट्रांसवर्सल, तो आपको एक Z तो दिखाई देगा, सिर्फ उल्टा Z दिखाई देगा। ओके, ये देखो, दिस दिस एंड दिस, यहाँ पे उसका शेप उतारता हूं मैं, ऐसा Z है हमारे पास, ये देखो, दिस इज द Z। तो ये और ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स। और जब लाइंस पैरेलल रहते हैं तो अल्टरनेट एंगल्स भी क्या रहते हैं, दे आर इक्वल। सो if you look at this angle, this is nothing but angle SOR. Okay, तो ये हो गया angle SOR. So I can write therefore angle SOR. अब ये एंगल है, ये Z है, ओके, ये वाला Z है, ये है, तो ये एंगल इज द पेयर ऑफ दिस अल्टरनेट एंगल। ओके, ये दोनों एंगल्स है अल्टरनेट एंगल्स। तो ये हो गया SPR, ओके, नॉट OR, SPR। This is angle SPR equal to PRM. Okay, it is angle equal to angle PRM. Why? Because they are alternate angles. Alternate angles. हर जगह पे रीजन लिखना भूलना नहीं। ओके, और ये कब हो सकता है, अल्टरनेट एंगल्स या करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कब रहते हैं, जब दोनों लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, तब भी होता है। ओके, अब यहाँ पे आ गया SPR, ओके, SPR equals to PRM और QPS equals to PMR। लेकिन और एक चीज गिवन है, क्या गिवन था कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो एक एंगल बाइसेक्टर है, तो ऑब्वियसली वो ये एंगल P को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो गिवन क्या था, एंगल QPS is equal to angle PSR, okay, but QPS is equal to PSR, बट क्या एंड लिख लो, एंगल QPS इक्वल्स टू एंगल SPR, ओके, QPS SPR। चलो, अभी यहाँ पे देखो, हमको मिला था SPR इज इक्वल टू PRM और यहाँ पे भी मिल रहा है SPR इज इक्वल टू QPS। अब मैं इसको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको और इजी जाए। एंगल SPR इज इक्वल टू एंगल QPS, सिर्फ दोनों के साइड चेंज कर दिया, इसको लेफ्ट पे लिख दिया, इसको राइट पे लिख दिया, बाकी कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप देखो, दोनों लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, और जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, हमको मिला था SPR इक्वल्स टू PRM और यहाँ पे मिल रहा है SPR इक्वल्स टू QPS। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड भी इक्वल। देयरफॉर एंगल PRM is equal to angle QPS. ओके, क्या मिला हमको, एंगल PRM, दिस इज PRM, ओके, इट इज इक्वल टू QPS, ओके, इट इज इक्वल टू QPS। चलो, अब देखते हैं हम क्या क्या हमको मिला है। ओके, पहले तो ये दो ट्राइंगल्स
सेम है। ओके, इनका मेजरमेंट, इस एंगल का मेजरमेंट और इस एंगल का मेजरमेंट जो इक्वल है। ओके, फिर हमको मिला कि QPS इक्वल्स टू PMR, यानी कि QPS ओके इज इक्वल टू PMR। ओके, हम सेम एंगल्स को सेम सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये एंगल भी हो गया सेम। अभी ये एंगल और ये एंगल भी हो गए सेम। अब उसके बाद हमको क्या मिला कि PRM इज इक्वल टू QPS, PRM इज इक्वल टू QPS। QPS का सिंबल भी यही है, तो PRM का भी सिंबल यही हो गया। अब देखो इससे क्या मिल गया कि इस ट्राइंगल में ये दो एंगल्स भी सेम है, दोनों के सिंबल सेम आ गए हमारे पास, तो दोनों ट्राइंगल्स भी सेम हो गए। तो फ्रॉम, अब इक्वेशन को नाम लिख लेते हैं, ठीक है। पहले लिख देंगे इसको करस्पॉन्डिंग एंगल्स वाला फर्स्ट, अल्टरनेट एंगल्स वाला सेकंड, और इसको लिख देंगे ये वाला जो है थर्ड। अब फ्रॉम 1 2 एंड 3, ओके, फ्रॉम 1 2 एंड 3 ऊपर लिख देता हूं, नीचे जगह खत्म हो गई है, सो आई विल राइट डाउन हियर फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या पता चल गया कि एंगल PRM इज इक्वल टू PMR। एंगल PRM इज इक्वल टू एंगल PMR। चलो, बहुत लंबा चौड़ा थ्योरम है, ओके, प्रूफ है, तो करना है अच्छे से, लेकिन आराम से, बिना बोल के। अब ये दो एंगल्स सेम आ गए, तो आपने पढ़ा होगा साइड्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, साइड्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, साइड्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, ये दो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स है, इनके साइड अपोजिट, इसका साइड अपोजिट ये है और इस एंगल का साइड अपोजिट ये है, तो साइड्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इससे डायरेक्टली क्या प्रूव हो जाता है, देयरफॉर सेगमेंट PR इज इक्वल टू सेगमेंट PM इज इक्वल टू सेगमेंट PM। ओके, नाउ यहां पे लिखना है रीजन, कौन सा लिखेंगे, साइड्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। ओके, साइड्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। चलो, यहां तक अभी हमारा आ गया। ओके, अब और एक इमेजिनेशन करना है और हमको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को रिकॉल करना है। ओके, अब देखो ये ट्राइंगल को देखो, QRM, ये पूरे ट्राइंगल को देखो, QRM, इन ट्राइंगल QRM कौन सी लाइन किसको पैरेलल है, पहले तो ट्राइंगल को देखो कौन सा है, QRM, ये पूरा ट्राइंगल है, ठीक है, और इसका वर्टेक्स Q इमेजिन करो, यानी कि उसका जो टॉप वाला वर्टेक्स है, इसको ट्राइंगल को टर्न करो और इसको ऊपर लेके जाओ, तो Q इज द वर्टेक्स और बेस कौन सा है ट्राइंगल का, RM, ठीक है। अब RM जो बेस है उसको कौन सी लाइन पैरेलल है, SP इज द लाइन पैरेलल टू इट, राइट। तो यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाना है कि इन ट्राइंगल QRM QS अपॉन SR इज इक्वल टू QP अपॉन PM। ओके, तो यहाँ पे हम लगाएंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सो इन ट्राइंगल QRM QS अपॉन SR, QS upon SR is equal to QP upon PM, is equal to QP upon PM. Why? Because of the basic proportionality theorem. चलो, अभी ये हमको मिल गया QS upon SR equals to QP upon PM, लेकिन PM is also equal to PR. Okay, but we know that PM is equal to what, PR। तो इस इक्वेशन को हम चेंज कर सकते हैं, जहां PM है उसके जगह पे PR ले सकते हैं, तो क्या बनेगा, therefore QS upon SR is equal to QP upon PR। तो क्या मिला हमको, QS upon SR is equal to QP upon PR, that is what we want, right? Hence we have proved that what, the bisector of an angle of a triangle, the bisector of an angle of a triangle divides the side opposite to the angle,
divides the side opposite to the angle in the ratio of the remaining sides. यानी कि SQ upon SR is equal to PQ upon PR. Now let us see the properties of three parallel lines and their transversals. So तीन लाइन दिए रहेंगे और उनके ट्रांसवर्सल दिए रहेंगे, उसके रिलेटेड हम एक थ्योरम देखते हैं. So it is concerned with property of three parallel lines and their transversals. So what does the theorem say? The theorem says that the ratio of the intercepts, these are the intercepts, जहां पे लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है वो इंटरसेप्ट हो गया. ओके, नाउ लेट अस सी द थ्योरम अगेन. द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल, these are the intercepts A, B, C which are made on the transversal T1. Ratio of the intercepts made on a transversal by three parallel lines is equal to the corresponding intercepts is equal to the ratio of the corresponding intercepts. It is equal to the ratio of the corresponding intercepts made on any other transversal by the same three parallel lines. वैसे ये सुनने को तो काफी डिफिकल्ट लगेगा लेकिन काफी इजी है. मैं एक बार रिपीट कर देता हूं. द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट्स मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट्स. इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट्स मेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल बाय द सेम थ्री पैरेलल लाइंस. अब सिंपल लैंग्वेज में व्हाट वी हैव टू से इज दैट when these are three parallel lines, if line L is parallel to M and M is parallel to N, means these are parallel to each other, then the condition is that then AB upon BC will be equal to PQ upon QR. अगर ये lines parallel है और ये दो transversal है और ये जो parallel lines है वो दो अलग अलग transversal को क्या कर रहे हैं, intersect कर रहे हैं, तो इनका जो ratio है वो equal रहेगा. That means we have to prove that AB upon BC is equal to PQ upon QR. So we have to prove this. So what has been given? Let us write down what things have been given. So given is that पहले सबसे दिया है कि ये तीनों lines parallel है, तो हम लिखेंगे line L parallel to line M parallel to line N. ओके, अब इसमें इंटरसेप्ट्स कौन से हैं? T1 एंड T2 आर द ट्रांसवर्सल और उसके बाद हम लिखेंगे वो वहां पे कौन से पॉइंट पे उनको इंटरसेक्ट करते हैं. T1 एंड T2 आर द ट्रांसवर्सल्स. ओके, T1 एंड T2 आर द ट्रांसवर्सल्स. नाउ द लाइंस L, M and N, the lines L, M, N intersect the transversal T1, intersect the transversal T1 at points A, B and C respectively, at points A, B and C respectively. Similarly हमको उधर का भी लिखना पड़ेगा. And they intersect transversal T2 and these lines intersect transversal T2 at points P, Q and R respectively, at points P, Q and R respectively. तो क्या दिया हुआ है कि लाइन M and N are parallel to each other and उनके intercepts कौन से हैं? A, B, C on transversal T1 and intercepts P, Q and R on transversal T2. ये हमको दिया हुआ है. Now what we have to prove? We have to prove that AB upon BC का जो रेशियो है AB upon BC is equal to PQ upon QR. चलो, that we have to prove in this theorem. अब इसके लिए we have to draw one construction. तो हम ये जो line CP है उसको join करने वाले हैं. So let us join
segment CP. Okay, we are going to join segment CP. So कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं, एंड जहां पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ओके, उसको ले लेते हैं कोई भी पॉइंट, कौन सा पॉइंट ले लेंगे, वी विल टेक दिस एज D पॉइंट. तो अभी हमको लिखना क्या है, जॉइन सेगमेंट CP, जॉइन सेगमेंट CP, join segment CP such that it intersects line BQ, such that it intersects line BQ. BQ को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, at point D, so that such that it intersects the line BQ at point D. तो ये चीजें अभी हमने पूरा लिख लिया है. नाउ वी हैव टू राइट द प्रूफ. अब प्रूफ को मैं यहां लिख देता हूं. लेट अस राइट डाउन द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम. बहुत सिंपल सा थ्योरम है. अब इसमें जो काम आने वाला है दैट इज द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में समझो अगर ये ट्राइंगल है और ये दो पैरेलल लाइंस है, तो हमको पता है कि PD अपॉन DC will be equal to PQ upon QR according to basic proportionality theorem. अब इस ट्रायंगल में भी आप देखोगे तो अगर हमने AP बेस लिया और C उसका वर्टेक्स लिया, तो ये दो कौन से पैरेलल लाइंस है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, देन CB upon BA will be equal to CD upon DP. अब एक चीज याद रखनी है कि अगर ये ट्रायंगल है और ये है ABC ट्रायंगल और ये लाइन है PQ, हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC if lines PQ are parallel to BC, and this is according to the basic proportionality theorem. अब ऑब्वियसली हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, यानी कि PB अपॉन AP, यानी इसको उल्टा कर दिया तो आगे वाला भी उल्टा कर देना है, will be equal to QC अपॉन AQ. ये भी चलता है, यानी कि PB ये डिस्टेंस है अपॉन AP इज इक्वल टू CQ अपॉन AQ. ओके, तो यही फंडा यहाँ पे लगाना है. अब वी विल फर्स्ट टेक द ट्रायंगल ACP. ओके, इन ट्रायंगल ACP, ACP कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला ACP. ओके, कौन से लाइंस पैरेलल है, BD इज पैरेलल टू AP, BD पैरेलल टू AB. ओके, तो हम लिख सकते हैं AB अपॉन BC, देयरफॉर AB अपॉन BC. जनरली हम क्या लिखते हैं, CB अपॉन BA इक्वल्स टू CD अपॉन DP. अब मैं उसका उल्टा लिख रहा हूं, AB अपॉन BC इज इक्वल टू PD अपॉन DC, इज इक्वल टू PD अपॉन DC. नाउ लेट अस नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 1. ओके, हमने इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1. अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे, दैट इज ट्रायंगल PCR. ओके, इन ट्रायंगल PCR कौन से लाइंस पैरेलल है, DQ इज पैरेलल टू CR, DQ इज पैरेलल टू CR, DQ पैरेलल टू CR. Therefore we can say that PD upon DC, therefore PD upon DC is equal to PQ upon QR, is equal to PQ upon QR. Why? Again basic proportionality theorem. Reason लिखना है by basic proportionality theorem. यहाँ पे भी हम इक्वेशन दे देंगे इसको नंबर 2, और एक इस वजह से हुआ है by basic proportionality theorem. चलो, दो इक्वेशन आ गए हमारे पास, AB upon BC equals to PD upon DC and PD upon DC is equal to PQ upon QR. यहाँ पे भी PD upon DC है, यहाँ पे भी PD upon DC है. ओके, अब मैं PD को उधर लिख देता हूँ, यानी कि PQ upon QR लेफ्ट हैंड साइड पे लेता हूँ, दैट इज PQ upon QR is equal to PD upon DC. सिर्फ पोजीशन चेंज कर, बाकी कुछ नहीं किया. अब देखो, दोनों राइट हैंड साइड पे PD अपॉन DC है, तो ये दोनों राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ऑब्वियसली उनके लेफ्ट हैंड साइड भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे.
PD upon DC, PD upon DC. These are the right hand side. Okay. So उनके लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वल हो जाएंगे. इनके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? Therefore AB upon BC will be equal to PQ upon QR. So from 1 and 2 we can write from 1 and 2. अगर राइट हैंड साइड इक्वल है PD upon DC दोनों जगह, तो उनके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? AB BC and PQ QR. So from 1 and 2 I can write that AB upon BC is equal to PQ upon QR. तो हमको क्या प्रूफ करना था? सेम प्रूफ करना था. AB upon BC equals to PQ upon QR. Hence proof. तो लास्ट में लिख देना hence proof. So ये सिंपल सा थ्योरम था. ये सभी थ्योरम्स को जो हमने पढ़ा है उनको अच्छे से रिवाइज करो, उनके पीछे का लॉजिक रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो उनको, ताकि हम प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकें. तो जल्दी हम मिलेंगे इसके रिलेटेड एक्सरसाइज.